segment. So that number is something जो कि हम लोगों को as equity investors we will keenly watch out for. Fiscal deficit number जो मैंने बोला वो भी एक रहेगा. I think from an investor point of view these are two important numbers जो कि शायद हमें देखना चाहिए. Okay. ठीक है. So ये सारे चीजें fiscal deficit, capex, these are the things that we have to look at. So again next question is for Avinav. Avinav, budget में it's basically a kind of income and expenditure of the whole government. कि कितना income आएगा, कितना expenditures होगा. So income comes from direct taxes, indirect taxes, dividend, disinvestment, and expenditures like capex and revenue expenditures. So currently, how the number look like? Of course, 2023-24, the government laid out a number of 5.9% of GDP as a fiscal deficit numbers, with a target of going to 4.5% by 2025-26. So how do you think this number is going to be, and how critical is this number for the market? And this year, how it's going to look like, and what is the focus for the next year? Avinav. जी तो इस साल तो जैसे कि सारे इकोनॉमिस्ट मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट आर द व्यू कि शायद फिस्कल डेफिसिट 5.9% या उससे कम ही आए. सो शायद 5.8 से 5.9% के बीच में कहीं आएगा. और उसका मेन जैसे आपने बोला कि टैक्स कलेक्शंस काफी स्ट्रांग थे इस साल. एंड गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेशन भी कुछ 5.3 से 5.4% का है आज मार्केट में. तो वो भी लगता है शायद पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि इकोनॉमी इज बायंट. बट ये नंबर कम होना जरूरी है. जैसे कि आपने बोला कि 4.5% का टारगेट है बाय FY26, बिकॉज जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होता है उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है. और व्हेन द गवर्नमेंट बोरोज मोर तो उसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेस कम बचता है. सो जिसे कि हम लोग क्राउडिंग आउट कहते हैं. So crowding out होता है and private sector finds it difficult to borrow. So fiscal deficit is very important and I think इस साल हम लोग शायद 5.9 से बेटर करेंगे. Next year का estimate शायद 5.3 से 5.4 के बीच में रहेगा. मुश्किल लगता है. मुझे नहीं लगता इस बजट में शायद कोई लॉन्ग टर्म ग्लाइड पाथ कुछ दिया जाएगा. So अगर दिया जाए तो अच्छा है, but maybe शायद they will wait for the full budget. Okay, so again now I'm coming to Devang now. Of course, Devang, now Avinav have said that the number could be even better than 5.9%. Now this fiscal deficit number. Now borrowings and all. So you look after fixed income, So again, rate cycle, we are almost literally at the peak of rate cycle. So how do you think it's going to impact the interest rate number one and the fixed income perspective? How does it look like? So हमारा व्यू ऐसा है कि I think probably Abhinav touch base on the fiscal deficit numbers और market का expectations काफी similar है. Around 5.3-5.4% का fiscal deficit number market बात कर रहा है. उसके अगर आप अनुमान लगाएंगे तो जो gross borrowing और net borrowing जो fixed income investors और fixed income participants जो बहुत गहराई से देखते हैं जिन नंबर को, हमारा अनुमान है कि उनका नंबर जो ग्रॉस बोरिंग नंबर आएगी वो काफी सिमिलर रहेगी लास्ट ईयर की तरह. लास्ट ईयर की नंबर अराउंड 15.4 लाख करोड़ की ग्रॉस बोरिंग थी और अराउंड 11.8 लाख करोड़ की नेट बोरिंग थी. हमारा अंदाजा ऐसा है कि इस साल भी बोरिंग काफी सिमिलर रहेगी. 15 लाख के आसपास की ग्रॉस बोरिंग रहेगी और अराउंड नेट बोरिंग अराउंड 11.8 to 12 लाख की नेट बोरिंग रहेगी. The important part आपने जो पॉइंट बोला कि फिक्स्ड इनकम रेट साइकिल काफी पीक आउट हो गई और हमारा अंदाजा ऐसा है कि इस साल डिसइंफ्लेशनरी थीम की वजह से, जहाँ पे ग्लोबली आप इंडिया ले लीजिए, आप ग्लोबल थीम ले लीजिए, आई थिंक द थीम व्हिच इज वर्किंग आउट राइट नाउ इज डिसइंफ्लेशन एंड चाइना स्लो डाउन इज आल्सो हेल्पिंग अस ऑन द डिसइंफ्लेशनरी थीम. तो जो चाइना में स्लो डाउन चल रहा है उसके वजह से इन्फ्लेशन नीचे ही दिख रहा है. A combination of all these things, या disinflation theme है, आप peak of interest rate cycle है, I think borrowing numbers अगर similar रहे तो probably fixed income markets के लिए काफी अच्छा रहेगा. और एक perspective जो इस साल नया है और fixed income investors के लिए specifically बहुत important है, इसकी हमारे इस साल I think Indian government bonds gets included into JP Morgan indices, global indices. Correct. तो वो बहुत महत्वपूर्ण है बिकॉज हर साल अगर आप देखेंगे जब बजट
और स्पेसिफिकली फिक्स्ड इनकम मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए जब भी बजट अनाउंस होता है तो वो लोग ग्रॉस बोरोइंग, नेट बोरोइंग फोकस करते हैं कि डिमांड सप्लाई कैसे रहेंगे. आई थिंक अभिनव ने और एक पॉइंट टच करा कि टैक्स बॉयंसी, इकोनॉमिक बॉयंसी बहुत स्ट्रांग है, तो टैक्स कलेक्शंस काफी ठीक रहेंगे. तो हम लोग जो देखते हैं कि टैक्स कलेक्शंस कितने रियलिस्टिक लग रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इन्फ्लेशनरी है, नॉन इन्फ्लेशनरी है, कितने पॉपुलिज्म मेजर्स यूज करी गई है. तो आई थिंक बीइंग एन इंटरिम बजट ये सारा फोकस कम रहेगा, बट बिकॉज हमारे बॉन्ड्स ग्लोबल इंक्लूजन, ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में इंक्लूड हो रहे हैं, 2.5 से 3 लाख करोड़ के फ्लोज इंडिया में आएंगे जून 24 से मार्च 25 तक, और विच इज एक्चुअली फिनोमिनल, बिकॉज अगर आप देखेंगे 25 बिलियन का नंबर है which will take care of most of the problems not only on rupee side but it also takes care of the demand supply of government bonds. जो demand supply dynamics है government bond की वो बहुत अच्छी हो जाती है, supply constant रह रही है, demand में एक नया buyer आ जा रहा है which is FPI, global investors, और इसके हिसाब से हमें लग रहा है कि global debt market का outlook because of this global bond inclusion looks positive, and with this roadmap of 5.9 to 5.3 to probably 4.6, I think it looks positive for fixed income investors at this point of time. ओके, वंडरफुल. सो हम लोग का जो व्यूअर्स है उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका मन में कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, प्लीज फील फ्री, गो अहेड एंड आपका क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप कीजिए एंड आई एम गोइंग टू पोस्ट दिस क्वेश्चन टू आवर पैनल मेंबर्स. सो कमिंग टू विजय, नाउ सी द इससे पहले 2019 में इंटरिम बजट दिया गया था. Although it was an interim budget, but quite a few good announcements were made with respect to Pradhan Mantri Kisan Samriddhi Samman Nidhi, income tax exemption that was brought from 2.5 to 5 lakhs, and again gratuity from 10 lakhs to 20 lakhs, maximum gratuity. वो काफी सारा लिया गया था. Now अभी थोड़ा देर पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि there are some themes, एक नारी शक्ति का ऊपर काफी सारा एम्फेसिस दिया जाएगा. एक है पोज, जो गरीब लोग हैं, एंड देन किसान. सो डू यू थिंक दिस टाइम वी आर गोइंग टू सी ए पॉपुलिस्ट काइंड ऑफ ए बजट, ए लिटिल बिट, एंड अगर उस तरीके का है तो मार्केट, हाउ द मार्केट माइट रिएक्ट अगेन? विराज. नहीं, आपका पॉइंट वैलिड है. इन रन अप टू एन इलेक्शन तो बजट पॉपुलिस्ट होने का चांसेस होता है. दूसरी अगर आप चीज देखेंगे तो गवर्नमेंट का जो कैश बैलेंस है विद आरबीआई, दैट इज ऑलमोस्ट 3.5 लाख करोड़. तो गवर्नमेंट के पास उतना फायर पावर है टू बी एबल टू स्पेंड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मतलब दिस कैश बैलेंस इज क्वाइट हाई, ये थोड़े हायर साइड पे है. तो अगर ये सब चीजों को आप एड अप करो तो देयर इज हाई चांस कि देयर विल बी सम पॉपुलिस्ट मेजर इन द बजट. एंड इलेक्शन के पहले हमेशा एक पॉपुलिस्ट मेजर आना, ये तो मतलब काफी एक्सपेक्टेड होता है. वो किस फॉर्म में आएगा वो इस गवर्नमेंट के साथ जज करना बड़ा मुश्किल है, बट देयर विल बी हाई प्रोबेबिलिटी कि कुछ ना कुछ आएगा. द ओनली थिंग इज मार्केट में नॉट टेक इट वेरी नेगेटिवली, बिकॉज जैसे पहले दो स्पीकर्स ने कहा कि टैक्स बॉयंसी काफी है, रेवेन्यू कलेक्शंस काफी अच्छे हैं, गवर्नमेंट के कैश बैलेंसेस भी आज के तारीख में काफी हेल्दी है. So if there is some amount of populism, उससे कोई भी चीज बहुत डिसरप्ट होते हुए दिखती नहीं है. अगर पॉपुलिज्म भी है एंड केपेक्स स्पेंड्स भी स्टडी ग्रोथ के साथ है, तो आई थिंक दैट वुड बी टेकन फेयरली ओके बाय द मार्केट्स. पीपल वोंट बी वेरी डिसअपॉइंटेड टू दैट एक्सटेंट. ओके, तो हम लोग काफी सारा बार देखा है कि मार्केट का रिएक्शन एंड व्हाट पीपल लाइक एंड डिसलाइक. नाउ ये जो बजट है, एक तो है एक्सपेक्टेशन एंड व्हाट माइट स्पूक द मार्केट. ये मेरा दोनों देवांग और अभिनव दोनों के लिए एक क्वेश्चन है. अगर मार्केट डिसअपॉइंटेड होते हैं कुछ कारण से, तो व्हाट आर द थिंग्स ये डिसअपॉइंट कर सकते हैं मार्केट को? बिल्कुल. So I'll go first. Yes. Yeah, please. Okay, so see, I think probably you mentioned it rightly. और as a fixed income guy, मेरे हिसाब से on the markets it's just the gross borrowing and net borrowing numbers which we will be looking at. अगर I think we touch base on this कि हमारा expectation है कि अगर fiscal deficit number because of the glide path, and it is also important to understand कि अगर हम आज का टाइम देखें तो be it rates,
बी इट ग्लोबल लिक्विडिटी, बी इट इंडिया रेट्स, सारी चीजें प्री कोविड चली गई हैं. लेकिन अभी भी अगर हम लोग फिस्कल डेफिसिट नंबर देखें तो फिस्कल डेफिसिट नंबर इज स्टिल वेरी हाई. प्री कोविड अगर आप देखेंगे तो जो सेंटर का फिस्कल डेफिसिट नंबर रहता था वो सब 4% रहता था और स्टेट डेफिसिट रहते थे अराउंड 2.5. अगर इस साल आप देखेंगे तो जैसे अभिनव ने बोला कि जो नंबर 5.9 5.85 रहेंगे और अगर आप स्टेट डेफिसिट ऐड करेंगे विच इज क्लोजर टू 3+, सो आप टोटल डेफिसिट नंबर अभी भी बात करें इज क्लोजर टू 9%, which is significantly higher. So government will have to rationalize everything has gone back to pre-COVID. हमारी जिंदगी अगर tax rates everything has gone back to demand growth outlook, सारी चीज अगर pre-COVID चली गई है तो fiscal deficit इतना high रख नहीं सकते हैं. So if for some reasons, and as I think Viraj highlighted, कि अगर populist measures continues and for some reason it is not backed by good capex and which can be assumed to be inflationary, अगर उससे inflation बढ़ता है, रेट साइकिल पे बहुत ज्यादा बोरोइंग नंबर्स काफी बढ़ा देते हैं, तो उसके हिसाब से डेट मार्केट्स माइट प्रोबेबली हैव अ नेगेटिव आउटलुक. सो बोरिंग बहुत ज्यादा हुई या फिर अगर पॉपुलिस्ट मेजर्स के हिसाब से इन्फ्लेशन थीम पे बड़ी आती है, अगर ये दोनों चीजें आई थिंक फिक्स्ड इनकम मार्केट्स देखेंगे एट अ 15 लाख करोड़ ग्रॉस बोरिंग प्लस माइनस 20,000 करोड़. I don't see any changes in bond markets tomorrow. Markets will not get spooked. मार्केट को कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा. बट अगर 15 लाख करोड़ से बहुत ज्यादा क्रॉस बोरिंग रही और बहुत पॉपुलिज्म रहा बजट में, तो थोड़ा आई थिंक 5-7 बेसिस 5 to 7 बेसिस इम्पैक्ट हो सकता है बॉन्ड मार्केट्स में कल. ओके अभिनव, देखिए as long as far as equity markets are concerned, मैंने जैसे पहले भी बोला कैपेक्स नंबर विल बी कीनली वॉच. तो कैपेक्स जैसा कि अभी एक्सपेक्टेशन है कि 11 से 11.5 लाख करोड़ के आसपास का कुछ रहेगा. सो उससे अगर थोड़ा कम नंबर आता है, बिकॉज आई थिंक देवांग इज ऑल्सो स्ट्रेसिंग कि फिस्कल डेफिसिट कम करना जरूरी है. करेक्ट. सो मे बी गवर्नमेंट में ट्राई की पॉपुलिज्म ज्यादा करें और कैपेक्स पे थोड़ा कम ध्यान दें इस बार, बिकॉज ये भी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइवेट कैपेक्स इज ऑल्सो पिकिंग अप. अगर कैपेक्स थोड़ा कम रहता है, मान लीजिए जितना जैसे लास्ट ईयर का कुछ 10 लाख करोड़ का नंबर है, तो अगर 10 से 11 के बीच में कुछ नंबर देते हैं तो शायद वो नेगेटिवली लिया जाए. एंड एक और चीज है जो शायद प्रोबेबिलिटी उसकी कम है, बट अगर कुछ टैक्स स्ट्रक्चर से कुछ छेड़छाड़ करे, बट आई थिंक प्रोबेबिलिटी इज लेस, क्योंकि ये इंटरिम बजट है, वो फाइनल या एनुअल बजट में ज्यादा किया जाता है, बट मे बी कुछ कैपिटल गेन्स या उससे कुछ रिलेटेड करे, बट आई थिंक आई विल से कि उसकी पॉसिबिलिटी काफी लेस है. सो फ्रॉम एन इक्विटी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक कैपेक्स इज द नंबर जो कि देखना चाहिए. बहुत ज्यादा कुछ पॉपुलिस्ट मेजर आ गया तो वो भी देखा, वो भी शायद नेगेटिव ले, बट देखिए इक्विटी में क्या होता है कि कहीं विनर्स होते हैं कहीं लूजर्स होते हैं. सो अगर पॉपुलिस्ट मेजर आता है तो अगर रूरल इनकम में बेनिफिट होता है तो देन ये भी देखा जा सकता है कि शायद रूरल इनकम रिलेटेड कंपनीज विल बेनिफिट. सो आई डोंट थिंक उतना ज्यादा कुछ नेगेटिव इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आएगा. ओके सो ठीक है, लवली. तो विराज, एक हम लोग का व्यूअर्स है शांतनु, तो उन्होंने पूछे हैं कि सेक्टर्स, व्हिच आर द सेक्टर्स, many sectors, there are hot sectors like railway, defense, AI, green, automobile, green energy, there are so many sectors. तो कौन कौन सा सेक्टर्स में हम लोग को ज्यादा अनाउंसमेंट को उम्मीद है और गवर्नमेंट माइट फोकस कर सकते हैं इन दिस बजट? सेक्टर वाइज अगर देखेंगे तो अगर हम पिछले 2-3 बजट देखें तो गवर्नमेंट बजट, मतलब ये बजटिंग में काफी कंटिन्यूटी रहा है. द फोकस हैज बीन लार्जली ऑन केपेक्स and the focus has been on railway, focus has been on water and focus has been on to some extent roads. तो ये गवर्नमेंट के 3 चीजें रही है जिसपे उनका पिछले 2-3 साल से लगातार फोकस रहा है. सो आई थिंक हमें की ये देखना है, और अगर हम स्टॉक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक जो है वो दे रहे हैं गवर्नमेंट, वो देखना पड़ेगा. दैट माइट बेनिफिट सम कंजम्पशन ओरिएंटेड. आई थिंक हमें ये देखना चाहिए कि ये जो सेक्टर्स है यहाँ पे सस्टेन करता है केपेक्स नंबर. राइट नाउ कमिंग टू देवांग, गवर्नमेंट ड्रिवन केपेक्स होता है. और एक और सेक्टर है पावर. आजकल पावर डेफिसिट की बड़ी बातें हो रही है, थर्मल केपेक्स की बातें हो रही है, तो इज देयर एनीथिंग टू सपोर्ट दैट? ये भी हमें देखना पड़ेगा कल के बजट में. तो आई थिंक की सेक्टर्स तो यही है. एंड अगर कोई पॉपुलिस्ट मूव आता है एज द अदर स्पीकर्स आर सेइंग,
तो फिर थोड़ा कंजम्पशन ओरिएंटेड, रूरल इकोनॉमी ओरिएंटेड कितना बूस्ट दे रहे हैं गवर्नमेंट, वो देखना पड़ेगा. दैट माइट बेनिफिट सम कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स टू दैट एक्सटेंट. Okay. Right. Now coming to Devang. Devang, government क्या क्या assumptions लेके growth assumptions, what are the assumptions and expectations going ahead in this budget, Devang? What are the things that they would like to assume? Very fair point. As you rightly pointed out, I think बजट में बहुत important exercise जो बजट की होती है वो एक forecasting रहती है कि आप assume करते हो आपके resources कैसे रहने वाले हैं और आप उसका plan out करते हो कि उसको allocate कैसे करेंगे. And as I think both the speakers pointed out, Abhinav and Viraj, it is more important about how do you allocate it among various sectors, how it is taken across by the मतलब कैसा लिया जाता है market से. It is populist, it is consumption based, it is capex based, and I think लास्ट 2-3 साल में जो काम किया गया है ऑन द केपेक्स साइड, इट इज फिनोमिनल, व्हिच इज एक्चुअली लेड टू लोअर इन्फ्लेशन आल्सो. तो इन्फ्लेशन भी काफी बेटर हो जाता है बिकॉज आप एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो. पॉपुलिस्ट मेजर्स लीड्स टू हायर कंजम्पशन एंड प्रोबेबली इन्फ्लेशन. द केपेक्स ओरिएंटेशन प्रोबेबली लीड्स टू मोर एफिशिएंसी एंड लोअर इन्फ्लेशन. सो हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि आई थिंक अगर हम आरबीआई के ग्रोथ प्रोजेक्शन देखेंगे और जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस आए हैं गवर्नमेंट की साइड से, वो दोनों तरफ से दिखाई दे रहे हैं कि दे आर लुकिंग एट नॉमिनल जीडीपी एट अराउंड 10.5 to 11% और स्लाइटली अराउंड दैट दोज लेवल्स. अगर आप मुझे पूछेंगे तो वहां पे थोड़ा ऑप्टिमिज्म ज्यादा है. हमारी पर्सपेक्टिव ऐसी है कि फर्स्ट इंटरेस्ट रेट साइकिल काफी हाई हो चुकी है. अगर आप देखेंगे ग्लोबल ग्रोथ प्लस इंटरेस्ट रेट जब ये बढ़ते हैं, इट स्टार्ट ईटिंग इनटू सेविंग्स एंड कंजम्पशन प्लस फिस्कल कंसोलिडेशन which will start from this year. अगर आप देखेंगे मैं जो बात बोली आपको कि 5.9 and everything is before pre-COVID. 5.9% was a fiscal deficit last year. उसके for the current year, sorry. And आप next year अगर देखेंगे तो projection है कि अगर 5.4 है तो there is a fiscal consolidation which is happening. What has been the true story for India growth is private capex has just started to pick up now. Private capex just चालू हुआ है. Government push on all perspectives. आप infra side से देखिए, government expenditure. And government has done quality as well as populist measures in the last few years. They have ensured subsidies also. जब COVID था, they have ensured capex also. So the combination of all these things have actually been the growth drivers in India. So अगर मुझे आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा जो 10-11% का projection है on the growth side is slightly on the higher side on the nominal GDP. And probably that can lead to a bit of disappointment when they are looking at revenues and if they are too aggressive in projecting the revenues. Our general belief is अगर आप गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, they have been very very conservative in tax projecting tax revenues. So we don't anticipate anything very significantly different this year. But अगर वो लोग ने बहुत ज्यादा टैक्स बॉयंसी दिखाई और अगर ग्रोथ थोड़ा फेड आउट होता है तो फिर वो टैक्स कलेक्शंस पे थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, which is something which probably as a fixed income market participant I would be watching out for. So growth projections जो 11% पे है plus tax buoyancy कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, I think these are the two important things which probably we should look at in the budget. Okay. Abhinav, one of the very interesting theme that we have currently is the manufacturing sector. You know, China plus one, lots of expectation from the manufacturing sectors. And these sectors includes, right from, steel to cement to steel, EV to semiconductors, lots of massive employment opportunity that it provides. And its contribution to GDP is also around 17%. Now, do you think that this budget, or maybe if not in this budget, but again June budget, we might see a massive push towards manufacturing sector? What do you think, Abhinav? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है. मैन्युफैक्चरिंग एज ए थीम, आई थिंक राइट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर इट्स बीइंग पुश्ड, और सिर्फ आज से नहीं, जब से 2014 से मैं देख रहा हूँ. और एक बड़ा स्लोगन भी है मेक इन इंडिया, और आप देखेंगे तो स्लोली एंड स्टेडीली काफी स्टेप्स उसमें लिए गए हैं. सो राइट फ्रॉम, अगर आप याद करें, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट हुआ था 25% तक वो लेके गए. उसके बाद अभी रिसेंटली जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स व्हिच इज पीएलआई स्कीम्स जो काफी सेक्टर्स में स्टार्ट की गई हैं, चाहे वो आप न्यू एज सेक्टर्स कह लीजिए, फॉर एग्जांपल बैटरी, इलेक्ट्रोलाइजर्स, या मे बी ओल्ड इकोनॉमी सेक्टर्स, फार्मा, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल फोन्स, ये सब में जो
लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं, ये काफी पिकअप कर रही हैं, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिल रहा है। एंड मेरा मानना है कि इसमें हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट आए, हो सकता है कुछ और सेक्टर्स इसमें इंक्लूड किए जाए या थोड़ा और आउटले बढ़ाया जाए, ये पॉसिबिलिटी है। जैसे किसी सेक्टर में अगर मान लीजिए आप कुछ सर्टेन आउटले था आपका, मे बी इट विल बी इंक्रीज्ड। एंड मुझे कोई डाउट नहीं है कि डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। आपने सही बोला, चाइना प्लस वन, और ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, चाइना प्लस। तो आई थिंक गवर्नमेंट ऑन इट गुड साइड, पॉजिटिव साइड, काफ़ी इसके मामले में जागरूक है। एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीएलआई रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट आ सकते हैं। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है जो, जैसे कि विराज ने बोला, काफी सारे सेक्टर्स उन्होंने कहे, रिन्यूएबल एनर्जी फॉर एग्जाम्पल। जैसे अभी मोदी जी रिसेंटली ही ऑल्सो अनाउंस्ड सोलर रूफटॉप स्कीम, करेक्ट। तो ऐसे काफी सारे स्कीम्स है, फेम सब्सिडी है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये सब पे भी हो सकता है कि कुछ अनाउंसमेंट्स आए, थोड़ी बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिले, आउटले बढ़े। इसमें भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें भी सम क्लैरिटी विल कम और आउटले विल बी इंक्रीज्ड इन दीस सेगमेंट्स आल्सो। Okay. Viraz, there are some questions actually, sector-wise questions. In fact, defense and railways. We are seeing a kind of a revolution in railways in last few years. You know, Vande Bharat and super fast bullet trains are going to come. So, how do you think going ahead, these sectors are going to perform with respect to government, announcing bigger things? How do you think about the future of these sectors? Is it heated up too much or still? नहीं, सी रेलवेज तो स्टॉक पर्सपेक्टिव से देयर आर सम स्टॉक्स व्हिच माइट बी क्वाइट एक्सपेंसिव, बट अगर आप लॉन्ग टर्म सोचे तो इंडिया में रेलवे कैपेसिटी इज स्टिल लेस देन व्हाट द डिमांड इज। मैंने कहीं तो पढ़ा था कि आर रेलवे कैपेसिटी ऑन एन एनुअल बेसिस ऑन द पैसेंजर रेल फ्रंट, वो जितना डिमांड है ना उससे 20% कम है। तो अगर हमको ये वेटिंग लिस्ट और टिकट ना मिलना और ये तत्काल, इफ यू हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड मेक ट्रैवल इजीली एक्सेसिबल, तो हमको कैपेसिटी काफी बढ़ाने की जरूरत है। ये कैपेसिटी बढ़ाने में ट्रैक्स भी डालने पड़ेंगे और रोलिंग स्टॉक, मतलब अपना ट्रेन और वो सब भी अपने को बनाना पड़ेगा। सो बट इसका ओनली कैवियट है कि ये गवर्नमेंट ड्रिवन सेक्टर है लार्जली, तो अगर गवर्नमेंट इसमें कैपेक्स करेगा तभी इसमें ग्रोथ आएगा। ये स्पेसिफिक सेक्टर में प्राइवेट केपेक्स आना थोड़ा मुश्किल है। हाई स्पीड रेल ले लो या इवन ट्रेडिशनल रेल ले लो या मेट्रो ले लो, तो दैट इज व्हाई बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ द केपेक्स नंबर्स सस्टेन एंड ग्रो, मतलब दे हैव टू ग्रो ऑन अ वाई बेसिस, तभी आपका ऑर्डरिंग बढ़ेगा। फ्लैट नंबर मे नॉट बी ग्रेट, ग्रोथ है तो ऑर्डरिंग में भी ग्रोथ आएगा टू दैट एक्सटेंट। सो मतलब आई थिंक द गवर्नमेंट का फोकस हैज बीन इन द राइट डायरेक्शन कि अपना कंट्री में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इज वेरी हाई व्हेन वी कंपेयर टू अदर कंट्रीज। कोई स्टडी बोलता है कि चाइना में 8% ऑफ जीडीपी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, इंडिया में 14 है। So directionally that 14 has to go towards 8. We might not get to 8 in a hurry, but direction has to be there. And वो अगर आपको करना है तो आपको रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको डीएफसी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको रोड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आई थिंक मतलब डायरेक्शनली गवर्नमेंट वही डायरेक्शन में सोच रहा है, बट बजट टू बजट देयर कैन बी वेरिएशन। जैसे फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करना भी जरूरी है, कुछ पॉपुलिस्ट मेजर भी हो सकता है। You have to provide for PLI and these other schemes. तो उसके चलते कोई नंबर कटने का रिस्क रहता है। So I think that is the key thing that we have to watch out for, कि अगर ये नंबर कट जाता है then that creates an issue for some of these railway stocks, and मतलब especially वो चल चुके हैं with the hope कि growth आता रहेगा to that extent. So इसके लिए important हो जाए। Okay. ठीक है. Again, my next question is again, let's talk about taxes. Of course, this is a interim budget. ये एक interim budget है, तो वहाँ पे हम लोग में भी हो ही सकता है कि there are some change in the income tax structure. So, Devang, do you think that the government is going to make some changes, new regime, may some more concessions they might give to taxpayers?
सी जनरली वोट ऑन अकाउंट्स में टैक्स चेंजेस नहीं आते बिकॉज एप्लीकेबिलिटी उनका इट क्रिएट्स मोर कंफ्यूजन बिकॉज अगर आप 3 महीने सी आई वी आर नॉट यूर फोरकास्टिंग एनीथिंग ऑन वेदर एनी न्यू गवर्नमेंट विल कम और समथिंग लाइक दैट मैं ऐसा कुछ बोलने नहीं जा रहा हूँ मेरा पॉइंट उतना होता है कि वोट ऑन अकाउंट बाय डिजाइन दी जनरली द थॉट प्रोसेस इज कि आप नेक्स्ट जब तक गवर्नमेंट री इलेक्ट होके नहीं आ जाती है या नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती है और आप पूरा बजट प्लेस नहीं करते तब तक आप जस्ट जो भी रिक्वायर्ड स्कीम्स के एलोकेशंस जो आपको चाहिए आप करके रखिए दैट्स द जनरल थॉट प्रोसेस ऑन वोट ऑन अकाउंट्स एंड फॉर दैट यू नीड टू गिव द बोरिंग नंबर्स सो जो जनरली नजरिया जो रहता है या ऑन वोट ऑन अकाउंट्स इज मोर अबाउट बोरिंग नंबर्स एंड ऑल दे डोंट जनरली गो फॉर टैक्स चेंजेस सो हमारा मानना ऐसा है कि कल कोई ज्यादा टैक्स चेंजेस नहीं आने चाहिए Okay, हम लोग again let's take some questions from viewers. Again, viewers को भी request है कि कोई भी questions है आपको, please feel free, go ahead and type your question in the chat box. तो एक question है Bestofix support, Bestofix guide. If you can explain what are the main factors which are good for the market and bad in tomorrow's budget. So Avinav, which are the announcement probably factors market को rally कराएगा और which are the factors market ऊपर है। might go for a tank. हाँ ऊपर जाइए। ऑन ए लाइटर नोट आजकल मार्केट में over to you. जरूरत नहीं है बट see we have already touched upon some of the factors like capex number is important Right. और ये फिस्कल डेफिसिट से एक टग ऑफ वॉर है सो इफ द गवर्नमेंट डिसाइड्स कि भाई कंसोलिडेशन करना है तो शायद कैपेक्स में कट करे तो वो कैपेक्स ओरिएंटेड थीम के लिए अच्छा नहीं होगा स्पेशली बिकॉज देयर हैज बीन अ बिग रैली पिछले एक साल में हमने देखा है काफी सारे स्टॉक्स 3 गुने 4 गुने हो गए तो वो एक नेगेटिवली लिया जा सकता है सेकेंडली जैसे मैंने बोला पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट विराज ने भी बोला कोई पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट आता है तो उसमें मुझे नहीं लगता इक्विटी मार्केट के लिए उतना नेगेटिव देखा जाएगा हो सकता है उसकी वजह से काफी सारे जो रूरल कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं विच हैव नॉट रियली डन वेल अगर आप देखेंगे कंपेयर टू कैपेक्स थीम तो वहां पे हो सकता है थोड़ी बॉयंसी आ जाए सो आई विल से ये दोनों चीज अपने को मॉनिटर करनी है रूरल कंजम्पशन के कुछ बूस्ट के लिए कुछ देते हैं सी बिकॉज आप देखोगे पिछले 3-4 साल से एंड कोविड आया उसके बाद इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा So while and if you see economy में भी अभी K-shaped recovery है, which is now very commonly said, क्योंकि luxury items तो बहुत जोरदार दिख रहे हैं, लेकिन जितने आप bottom of the pyramid जाएंगे उतना slow down है. तो शायद हो सकता है कि उसके लिए कुछ ना कुछ कल announcement आए और election में भी हम लोग जा रहे हैं. तो वो एक अपने को वॉच आउट करना है कि इससे रिलेटेड कुछ कंजम्पशन स्टॉक जो कि बॉटम ऑफ द पिरामिड को कैटर करते हैं या मिडिल ऑफ द पिरामिड को कैटर करते हैं उनमें शायद कुछ बेनिफिट देखा जा सकता है अगर ऐसा कुछ अनाउंसमेंट आता है कैपेक्स में अगर ऐसा मैंने बोला 11-11.5 लाख का नंबर आता है तो पॉजिटिव है उससे ऊपर आता है तो ज्यादा पॉजिटिव है उससे नीचे आता है तो नेगेटिव है सो ऑन द बैलेंस मुझे लगता है या तो नंबर 11-11.5 आएगा या उससे कम आएगा उससे ऊपर आने का चांस थोड़ा कम है especially in the India. But having said that, with this government, you never really know because they are known for giving surprises. So, हो सकता है ज़्यादा भी. I think अभी आज Delhi आगे up to December, what is the capex expenditure? Now coming to Viraj, अगर as Avinav said, अगर capex numbers बढ़िया आते हैं 11.5 को ऊपर आते हैं तो which are the sectors that we should look at अगर कंजम्पशन के ऊपर गवर्नमेंट का काफी एम्फेसिस आते हैं which are the sectors that investors can look for I think within capex you have to look at the breakup like जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि वेदर गवर्नमेंट का थीम कहीं चेंज तो नहीं हुआ है क्योंकि पिछले 3 साल से ये 2-3 थीम्स प्रोमिनेंट रहे रेलवे वाटर टू सम एक्सटेंट रोड्स तो अगर कोई थीम चेंज हो रहा है या नहीं वो आई थिंक देखना थोड़ा की है कंजम्पशन तो मतलब इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन कोई पॉपुलिस्ट मेजर है एंड व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द पॉपुलिस्ट मेजर मतलब सिर्फ 30-40 thousand करोड़ का कोई मेजर है दैट उससे कोई डेल्टा नहीं आता है
कंजम्पशन. इट हैज टू बी अ वेरी लार्ज मेजर जिससे डेल्टा है. एक और दूसरी चीज हमें देखनी पड़ेगी या गवर्नमेंट को करना पड़ेगा कि अगर हम देखेंगे तो इंडियन जो कॉर्पोरेट्स है उनका एबिलिटी टू डू केपेक्स काफी ज्यादा है आज के तारीख में. अगर हम देखेंगे मेरा जो फेवरेट नंबर है कि 2018-19 तक BSE 200 अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट वाज 2 लाख करोड़ ऑन एग्रीगेट, 4 लाख करोड़ ऑन एग्रीगेट, और उनका केपेक्स भी 4 लाख करोड़ होता था ऑन एग्रीगेट. आज के तारीख में दैट प्रॉफिट हैज गॉन फ्रॉम 4 लाख करोड़ टू क्लोज टू 11 लाख करोड़ के आसपास. वो रन रेट चालू है, लेकिन केपेक्स टू दैट एक्सटेंट बढ़ा नहीं. इनफैक्ट जो एक्सेस कैश जनरेट हो रहा है दैट हैज गॉन इन रिपेइंग लोन्स. तो इसके लिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर नॉट डेट फ्री. तो ये जो एबिलिटी टू डू केपेक्स है वो काफी हाई है, क्योंकि हम इतना प्रॉफिट बना रहे हैं, केपेक्स नंबर उससे काफी कम है, बिल्कुल लेवरेज नहीं है, तो दे कैन बोरो एंड डू केपेक्स. तो गवर्नमेंट ने कोई स्कीम नहीं, बट जो भी मेजर्स है दे शुड आल्सो एंश्योर दैट दे आर समहाउ एनकरेजिंग प्राइवेट केपेक्स. That can be through increasing consumption, or that can be through some tax cuts. कि capex करेंगे तो tax cut. That can be through some other measures. मतलब गिनाना मुश्किल है, but I think government capex तो अच्छा हो रहा है, but government capex as a percent of overall capex is on the lower side, जबकि private capex as a percent of overall capex काफी ज्यादा होता है, and उसको पिकअप होने में अभी भी काफी स्कोप है. मतलब काफी फायर पावर है सिस्टम में to do incremental capex. So I think some measure on that will be very useful to that extent. Okay. So great. I think again, I think we can go for the last round of questions. In fact, I will start with Devang. As a whole, how do you look? What is your expectations? And how do you see the market? You know, because you are from fixed income side, how do you see the whole fixed income side unfolding in year 2024? तो धीरज, एक्चुअली हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि दिस इज प्रोबेबली द ईयर फॉर फिक्स्ड इनकम. लास्ट 2-3 साल से फिक्स्ड इनकम एसेट्स हैव नॉट डन सो वेल बिकॉज ऑफ द राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट. एंड फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव अगर आप देखेंगे तो सारे स्टार्स अलाइंड है फिक्स्ड इनकम के लिए. फिक्स्ड इनकम के लिए फिक्स्ड इनकम मार्केट्स कब अच्छा रिटर्न देते हैं, अगर आप पास्ट ट्रेंड्स देख लेंगे तो जब ग्रोथ पिक आउट हो गया हो, दैट इज अ टाइम वेयर प्रोबेबली सेंट्रल बैंक स्टार्ट्स टू फोकस ऑन कि अगर ग्रोथ बहुत हाई हो गया है तो दे डू नॉट नीड टू फर्दर एनी पंप प्राइम द इकोनॉमी. तो पंप प्राइम इकोनॉमी अभी जरूरत नहीं है, कोई ग्रोथ काफी अच्छा है. सेकंड चीज अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन आई थिंक समवेयर डाउन लाइन ब्रॉडली पीक आउट हो चुका है. आरबीआई के जनरली जो 2 वरी रहते हैं, जो जनरली हमेशा कंसर्न करते हैं उनको, इज वन इन्फ्लेशन एंड सेकंड इज एक्सटर्नल सेक्टर. External sector looks okay to us. I think with state elections जो उनके रिजल्ट आए हैं, the kind of FPI flows last 2-3 महीने में इंडिया में आए हैं, डेट और इक्विटी दोनों में. डेट मार्केट में आई थिंक जस्ट टू गिव यू सम नंबर्स, 55,000 करोड़ के फ्लो आए हैं इन द लास्ट 4 months सिंस द अनाउंसमेंट कि हमारे बॉन्ड्स JP Morgan ग्लोबल इंडाइसेस में इंक्लूड हो रहे हैं. 55,000 करोड़ के फ्लो आए हैं इंडिया में. सो ऑन द डेट मार्केट स्पेसिफिकली. So the point I'm trying to put across is कि अगर मैं फिक्स्ड इनकम मार्केट की तरफ से देखूं तो जो ग्रोथ आउटलुक है वो प्रोबेबली पीक आउट हो चुका है. यहाँ से ग्रोथ आउटलुक नीचे रहेंगे. अगर आप इन्फ्लेशन देखेंगे, नॉट ओनली इंडिया, ग्लोबली आई थिंक इन्फ्लेशन थीम लोअर है. कोर इन्फ्लेशन ऑलरेडी 4% के नीचे चला गया है. कोर इन्फ्लेशन हमारा पूरा साल का एक्सपेक्टेशन है 4 के आसपास रहेगा. हेडलाइन इन्फ्लेशन 5-5.25 के आसपास रहेगा. तो rates की cycle और नीचे रहेगी. I think probably markets will start pricing in rate cuts. So our expectation actually is कि this year you will see good returns from fixed income markets, and probably we advise clients to probably add duration to their portfolios. Wonderful. Avinav, what is your expectations and how do you see the market unfolding in 2024? See, I think if you see last 3 years, we have seen very strong rally, and especially अगर आप देखेंगे mid cap, small cap में काफी strong rally हुई है, but even large caps have seen good returns. So base case expectation is कि ये साल शायद return उतने ना आए जितने पिछले 2 साल में आए. I cannot give a particular number, but मैं यही कहूँगा कि investors को अपना जो expectation है थोड़ा moderate रखना चाहिए because of the fact that valuations भी हम लोग के काफी ज्यादा हो गए,
एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो हम लोग आई थिंक ऑलमोस्ट 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव हिस्टोरिकल एवरेज। सो रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन मॉडरेट रखें इस साल के इस पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर वेरी पॉजिटिव, इवन फ्रॉम अ मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। बट क्योंकि इतनी रैली हुई है तो एक बनता है कि थोड़ा मॉडरेशन इन रिटर्न्स वन शुड एक्सपेक्ट। ओके, सो विराज, जैसे अभिनव एंड देवांग दोनों ने कहा है कि डू नॉट एक्सपेक्ट ए वेरी हाई रिटर्न दिस ईयर। नाउ अगर मैं पूछता हूँ आपको कि अगर हम लोग को 10% प्लस काइंड ऑफ रैली चाहिए 2024 में भी, so what are the things that has to happen, you know, under what condition, you know, what factors need to be aligned to achieve that, Viraz? नहीं, ये करने के लिए ना आई थिंक मतलब लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू गो राइट। मतलब 10% तो आई डोंट नो, मतलब ऐसा एग्जैक्ट नंबर बोलना मुश्किल है, बट फॉर नहीं, दिस it's just a number. हाँ, मतलब ये साल अगर इक्विटी मार्केट के लिए बहुत बढ़िया होना है तो मल्टीपल थिंग्स हैव टू गो राइट। वन इज कि आपका ग्रोथ स्ट्रॉन्ग कंटिन्यू रहना पड़ेगा, कि मतलब हम देख रहे हैं कि निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ हैज बीन क्वाइट रोबस्ट पिछले 2-3 साल से, वो ट्रेंड कंटिन्यू रहना पड़ेगा। उसमें भी क्या है कि ये साल जो ग्रोथ आया अगर हम देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ हैज बीन म्यूटेड, बट मार्जिन एक्सपेंशन की वजह से आपका सारा ईपीएस ग्रोथ आया है इन FY24। नेक्स्ट ईयर अब इसके बियॉन्ड मार्जिन एक्सपेंशन होना मुश्किल है, तो सेल्स ग्रोथ हैज टू पिक अप। नेट आपका जीडीपी ग्रोथ काफी स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपका सेल्स ग्रोथ काफी स्ट्रांग होना पड़ेगा, एंड उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट कट होना पड़ेगा। मतलब if interest rates get cut globally and in India, then that adds another kicker to the market, because interest rate जितना गिरता है इक्विटी वैल्यूएशन उतना ज्यादा सेंस बनता है, मतलब अगर वो इक्वेशन में आप बिठाएंगे तो। सो आई थिंक ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली सही जानी पड़ेगी कि ग्रोथ भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा और इंटरेस्ट रेट कट भी आना पड़ेगा, विच इज मतलब जनरली ये दोनों साथ में होना थोड़ा मुश्किल होता है, एंड व्हेन वी आर एट सच हाई वैल्यूएशन everything has to go right to that extent. So I think अगर ये दो कंडीशन हुई तो नेक्स्ट ईयर भी बढ़िया रिटर्न आएंगे, बट उसका प्रोबेबिलिटी ऐसे will not be very high. That is how I put it. Okay, great. I think it's a great talking to all of you, Devang, Avinav, and Viraj. So I think we can sum up that yes, our economy is in a very strong footing. The government is going to do everything to continue the growth momentum. एंड ऑल्सो हम लोग को भी ये भी देखना है कि एक्सपेक्टेशंस हम लोग रैशनल रखें। जिस तरीके से हम लोग 2024 में एक्सपेक्टेशन हम लोग का था, शायद हम लोग नहीं भी देख सकते हैं 2024 में, पर इसका मतलब ये नहीं है अभिनव जैसे कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में इज ऑलवेज वेरी वेरी ब्राइट। इंडिया इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी टुडे, इन द वर्ल्ड टुडे। सो नथिंग रिमेन इन्वेस्टेड, हम लोग को इन्वेस्टमेंट करके बने रहना है। And yes, I think with that, I would like to close the session. Thank you so much, Devang, Avinav, and Viraj for being a part of this program.